Dear student, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss the concluding part of the chapter 35, section 478 to 496, titled Provisions as to the Bail and Bail Bond. Dear student, as you know well that for the last two videos we have already discussed part 1 and part 2. Majority of the provisions we have already discussed. Now under this concluding part we will be discussing the from the section 491 to remaining chapter to the end of this chapter number 35. As you know well that under this chapter I mean to say about the provisions as to bail and bail bonds. We have discussed when the in what cases the bail to be taken, in what circumstances bail can be taken under the valuable offences, and it was the section 478. Thereafter we have already discussed section 479, which talks about the maximum period for which under trial prisoner can be detained, यानी कि कब और किस परिस्थितियों में एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को कितने समय जेल पे रखा जा सकता है, कौन कौन सी अवधि होगी, ये we have already discussed in detail. Thereafter we have discussed section 480 which talks about the when bail be taken in the case of non-bailable cases, non-bailable offences में कब bail grant किया जाता है. पर काफ़ी बड़ा चैप्टर था. We have already discussed each and every provisions from 480 subclause 1 to 480 subclause 7 we have already discussed. Thereafter we have discussed the special anticipatory bail under section 482, which talks about the direction for grant to bail to a person apprehended arrest. Thereafter we have discussed a special power of the High Court or Court of Session to granting bail, and last few sections we have discussed amount of the bail and reduction of the bail and so many provisions regarding to the bail. So, by and large, we have already discussed the majority of the provisions regarding to the bail and bail bonds. As far as the 491 talks about the procedure when bail bond has been forfeited. That is very important aspect of the bail, that when and what circumstances bond has been forfeited. So यहाँ पर बात की गई है, the question is that what is forfeited? When a bond is forfeited, if you see the simple meaning of this forfeited, that is, it means that the surety, the person और इंटिटी प्रोवाइडिंग द गारंटी, ऐसा व्यक्ति जो है एंटिटी जिससे कि कोई प्रॉपर्टी जो है गारंटी के तौर पर दी गई है, ऐसा सिक्योरिटी लूजेज देयर राइट टू हैव द बेल अमाउंट रिटर्न. वो जो बेल अमाउंट जो कोर्ट में जिस बॉन्ड पर देता है उस अमाउंट को प्राप्त करने में विफल हो जाता है. उसी हम वो कहते हैं उसके यानी अमाउंट की धनराशि को जो है कोर्ट कतिपय परिस्थितियों में फॉरफिटेड कर देती है. ये जनरली तब होता है, दिस यूजली हैपेंस व्हेन द पर्सन दे आर गारंटिंग द अपीयरेंस ऑफ फेयर टू अपीयर इन कोर्ट एज रिक्वायर्ड. जब भी कोर्ट, क्योंकि देखिए बॉन्ड तभी दिया जाता है, बेल बॉन्ड तभी भरा जाता है कि वो आप एक गारंटी दे रहे हैं किसी व्यक्ति को कि ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं इसके बिहाफ मैं इंश्योर करूँगा कि ये व्यक्ति कोर्ट में अपीयर हो जाए. इसके लिए कोर्ट अगर सिक्योरिटी मनी कुछ जमा कराती है तो वो सिक्योरिटी मनी वो जमा इसलिए करता है क्योंकि वो अगर वो अपने इस ड्यूटी में फेल हो जाएगा तो उस बॉन्ड उस सिक्योरिटी अमाउंट को जो है वो जमा कर दिया जाएगा. तो तो अगर वो अपीयरेंस की गारंटी देता है और गारंटी वो फेल हो जाता है, अपीयरेंस नहीं हो पाता है वो एक व्यक्ति का, तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो फॉरफिटेड कर लिया जाएगा. द कोर्ट देन टिपिकली गिव्स द बॉन्ड अमाउंट एज ए पेनाल्टी. पेनाल्टी के रूप में कोर्ट जो है वो बेल अमाउंट को जो है वो रख लेती है. कुछ अगर और चीज़ें इसके बारे में हम जाने तो ये देखा जाएगा कि बॉन्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज बॉन्ड. इन ए लीगल कॉन्टेक्स्ट द बॉन्ड इज ए फाइनेंशियल गारंटी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉन्ड जो होता है वो एक फाइनेंशियल गारंटी होता है और सिक्योरिटी होती है, प्रोवाइडिंग टू इंश्योर, जो प्रोवाइड किया जाता है इस इंश्योर के लिए अ पर्सन अपीयर्स इन द कोर्ट और टू फुलफिल सर्टेन ऑब्लिगेशन. कि कोर्ट जो है किसी व्यक्ति से कुछ ऑब्लिगेशन को यानी अपीयरेंस होने की अपेक्षा को जो है वो फुलफिल कराना चाहती है. वाई आर बॉन्ड फॉरफिटेड? क्यों बॉन्ड को फॉरफिट किया गया? क्यों? क्योंकि अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड व्हेन द पर्सन बाउंड बाय द बॉन्ड, वो व्यक्ति जो बॉन्ड से बाउंड है, उस बॉन्ड से बाउंड है,
द वन हु मेड द एग्रीमेंट, जो जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया है, जिस व्यक्ति ने उसके बिहाफ पर सिक्योरिटी दी है या गारंटी दी है, फेल्स टू मीट द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड पर कंडीशन बताई गई है उस बॉन्ड को कंडीशन को वायलेट किया है। ज़्यादातर कंडीशन ये होता है कि जब जब कोर्ट और पुलिस ऑफिसर उससे जिस जिस जगह पर स्थान पर दिनांक को बुलाए वो अपीयर होगा। मान लीजिए वो अपीयर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो है उस मान लिया जाएगा कि वो बॉन्ड जो है वो फॉरफिटेड हो गया है। मोस्ट कॉमनली नॉट appearing in the court as required. What happen when the bond is forfeited? अगर बॉन्ड फॉरफिटेड हो रहा है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में द श्योरिटी, द पर्सन जिसने बॉन्ड दिया है, लूजेस टू राइट टू हैव द बाउंड अमाउंट रिटर्न। ज़्यादातर केसेस में होता है कि अगर कोर्ट अपीयर, वो व्यक्ति जिसके लिए आपने गारंटी दी है वो अपीयर हो जाता है तो उस बॉन्ड की धनराशि को लौटा दिया जाएगा। मान लीजिए अगर अपीयर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएगा और उस रिटर्न करने का जो राइट्स है सिक्योरिटी का, वो राइट जो है वो खो देता है। The court generally keep the forfeited bond amount, उस जब फेल हो जाएगा तो उस अमाउंट को जो है कोर्ट अपने पास रख लेगी एज ए पेनाल्टी। द पर्सन हु फेल टू अपीयर इन द कोर्ट में फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंस। और व्यक्ति जो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है वो लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस करेगा, जैसे मान लीजिए उसके अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट या अरेस्ट का वारंट इशू करके उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा। कभी कभी बॉन्ड को रीइंस्टेट किया जाता है कि अगर वो व्यक्ति बॉन्ड फॉरफिटेड हो चुका है, अगर फ्रेश बॉन्ड देता है तो फिर उस बॉन्ड के या कोर्ट उसको एक्सक्यूज करती है तो बॉन्ड की राशि को जो है वो लौटाई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा जो नॉलेज था वो हमने आपको दिया था। बॉन्ड, बेल बॉन्ड और बॉन्ड अगर फॉरफिटेड होता है उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बॉन्ड होता है, ये सारी चीज़ें वो मैं बताया। नाउ कम टू सेक्शन 491 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल जस्ट व्हाइल अगो दैट अ बॉन्ड अंडर दिस संहिता इज फॉर द अपीयरेंस। ज्यादातर बॉन्ड जो है अपीयरेंस के लिए होता है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी को प्रोडक्शन करने के लिए कोर्ट में जो है बॉन्ड जो है वो बॉन्ड को सिग्नेचर किया जाता है बिफोर ए कोर्ट एंड इट इज प्रूव दैट द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का सैटिस्फैक्शन हो जाता है और ऑफ एनी कोर्ट टू विच द केस हैज बीन सब्सिक्वेटली, और या किसी और कोर्ट को, या तो ओरिजिनल कोर्ट को जहां पर बॉन्ड भराया गया है या उस कोर्ट को जो सब्सिक्वेटली वो केस ट्रांसफर होकर गया है, दैट द बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, वो बॉन्ड को जो है वो फॉरफिट किया गया है। इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोर्ट में अपीयर होने के लिए बॉन्ड या संपत्ति को प्रस्तुत करने के लिए बॉन्ड दिया गया है और कोर्ट के सेटिस्फैक्शन में वो प्रूव हो चुका है या उस मामले में किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है कि बॉन्ड अब फॉरफिटेड हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा इस बार। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर बॉन्ड, किसी अन्य बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अंडर दिस संहिता इट इज प्रूव, ये प्रूव हो चुका है टू द सैटिस्फैक्शन द कोर्ट सैटिस्फैक्शन तक ये प्रूव हो चुका है बाय विच द बॉन्ड वाज टेकन, जिसके लिए बॉन्ड दिया गया है, और एनी कोर्ट टू विच द केस हैज बीन सब्सिक्वेटेड टू, या फिर उस केस को कहीं और ट्रांसफर किया गया है और उस कोर्ट को भी यही प्रूव हो चुका है, और द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास दैट द बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, और उसको ये लगता है कि बॉन्ड फॉरफिटेड हो चुका है। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ सच प्रूफ, कोर्ट जो है ऐसे प्रूफ को जो है वो रिकॉर्ड करेगी एंड मे कॉल अपॉन द पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड, और उस व्यक्ति को बुलाएगी जो इस बॉन्ड से बाउंड है, टू पे द पेनाल्टी, कि बुलाएगी और उसे कहेगी वो पेनाल्टी पे करे, और टू शो कॉज व्हाई इट शुड नॉट बी पेड, और उसे शो कॉज करेगी क्यों ना उससे पेनाल्टी लिया जाए। तो यहाँ दो बातें बताई गई कि जब बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाता है तो कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा जिस जो इस बॉन्ड से बाउंड है, कि उसको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि वो जो सिक्योरिटी मनी उसने जमा की है क्यों ना उसे फॉरफिटेड किया जाए या शो कॉज किया जाएगा उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज करने के लिए। दोनों चीज़ें की जा सकती है। ये उपरोक्त स्थिति में कोर्ट जो है प्रूफ के ग्राउंड को रिकॉर्ड करेगी और उस व्यक्ति से जो बाउंड है उसे बुलाएगी और उससे पेनल्टी देने को कहेगी, और ये उसे शो कॉज भी पूछेगी कि क्यों ना उसे पेनल्टी पेड किया जाए। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्लास में कहा गया कंडीशन इन अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर ए कोर्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज द इंक्लूडिंग अ कंडीशन फॉर अपीयरेंस और एज द केस में बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर एनी कोर्ट टू विच द केस में सब्सिक्वेटली बी ट्रांसफर। स्पेशल क्लास में कहा गया दोस्तों कि यदि बॉन्ड पर कोर्ट में अपीयर होने के लिए कंडीशन लगाई गई है
या प्रॉपर्टी के प्रोडक्शन करने के लिए कंडीशन लगाई गई है किसी कोर्ट के सामने, तो जिस कोर्ट ने या उसके सब्सिक्यूटरी कोर्ट में जहां वो केस ट्रांसफर होकर आया है, वो कंडीशन उसी प्रकार से आरोपित माना जाएगा। ये स्टेशन क्लास में कहा गया कि जो ओरिजिनल कोर्ट है जिसमें बॉन्ड भरवा है वो तो कंडीशन को फॉलो कराएगा ही कराएगा। बाद में जो ट्रांसफर होके जिस कोर्ट में वो केस गया है, उस कोर्ट को भी पावर है कि उस कंडीशन को जो है वो फॉलो कराए। दूसरा है इफ सफिशिएंट कॉज इज नॉट शोन एंड पेनल्टी इज नॉट पेड। ऊपर में कहा गया, यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि यहाँ पर कोर्ट जो है उसे पेनल्टी पे करने के लिए कहेगी, और अगर वो पेनल्टी पे नहीं करता है, न ही उसका कोई पेनल्टी पे करने का कोई सफिशिएंट रीजन बताता है, द कोर्ट में प्रोसीड टू रिकवर द सेम एज इफ सच पेनल्टी वेयर अ फाइन इम्पोज्ड बाय इट अंडर दिस साइड था। तो उस पेनाल्टी को फाइन जैसे रिकवर किया जाता है, उसी तरह से रिकवर कराया जाएगा पेनाल्टी इम्पोज अगर किया गया है तो। प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया दैट वेयर सच पेनाल्टी इज नॉट पेड एंड अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन अ मैनर अफोरसेड, द पर्सन सो बाउंड एज श्योरिटी शैल बी लायबल बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द रिकवरी ऑफ द पेनाल्टी टू इम्प्रिजनमेंट इन सिविल जेल फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ। यहाँ पर अब सजा की बात की गई है। उपरोक्त में कहा गया है कि कोर्ट उस व्यक्ति को बुलाएगी और वो पूछेगी कि क्यों ना उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज किया जाए, या वो पेनाल्टी की रकम को जो कोर्ट में जो सिक्योरिटी बनी है उसको क्यों ना एज ए पेनाल्टी जब्त कर लिया जाए, या फिर शो कॉज करेगी। और उसके बावजूद भी अगर व्यक्ति ने पेनाल्टी की रकम कोर्ट में पे नहीं की है, तो मान लिया जाएगा कि पेनाल्टी न होकर उसके ऊपर फाइन लगाया गया है, जिससे फाइन रिकवर की जाएगी। उसी तरह से इस व्यक्ति से वो पैसा अमाउंट जो है बॉन्ड की सिक्योरिटी का अमाउंट रिकवर किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो पेनाल्टी पेड नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया यदि ऐसा पेनाल्टी नहीं पे किया जाता है और उपरोक्त प्रोसेस में फाइन की तरह रिकवर भी वो नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सिक्योरिटी को जिसने की गारंटी ली है उसे लायबल ठहराया जाएगा। That is very important point of view, point that student you must know that कि अगर वो व्यक्ति पेनाल्टी नहीं देता है, तो उस व्यक्ति के बिहाफ पर जिस भी सिक्योरिटी ने उसकी गारंटी ली है कोर्ट में अपियर कराने की, उस गारंटर को जो है वो लायबल ठहराया जाएगा। और फिर कोर्ट आदेश देगी उन सारी व्यक्तियों को जिसने उस व्यक्ति की सिक्योरिटी ली है कि उसका पैसा जो है वो उसके जरिए जो है सिक्योरिटी अमाउंट पे किया जाएगा। और यदि वो ऐसा भी नहीं करता है तो उसे सिविल जेल में अधिकतम जो है वो 6 महीने तक जो है वो डाला जा सकता है। अधिकतम 6 महीने की छह महीने की जो है सजा, जो अधिकतम 6 महीने की सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने कि ये डिफॉल्ट किया है। अब आइए दोस्तों 498 का सर्वस्ती कहता है द कोर्ट में आफ्टर रिकवरिंग इट्स रिमेन फॉर डूइंग सो रिमिट any portion of the penalty mentioned and enforce payment in part only। दोस्तों ये 498 का सब क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां कोर्ट को ये पावर है कि वो रीजन को रिकॉर्ड करके पेनाल्टी के किसी भी पोर्शन को माफ कर सकता है। पेनाल्टी इम्पोज किया गया कोर्ट के द्वारा उपरोक्त 491 में, अगर बिल जो है फॉरफिटेड हो जाता है तो व्यक्ति से पेनाल्टी पे करने के लिए कहा जाएगा, और पेनाल्टी पे नहीं करता है तो मैक्सिमम उसे 6 महीने के कारावास की सजा भी दी जा सकती है। और यहाँ पर कोर्ट को ये भी पावर है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द 491 कि कोर्ट चाहेगा तो उसके अमाउंट को जो है, जो पेनाल्टी के अमाउंट को जो है वो रिमिट भी कर सकता है, या कुछ मात्रा तक रिमिट कर सकते हैं। बचे हुए अमाउंट को जो है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू, माने कि पोर्शन के थ्रू कुछ किस्तों में वो देने को कर सकता है। कि एक कुछ नहीं दे पा रहा है तो इंस्टॉलमेंट भी कोर्ट को पावर है कि वो इंस्टॉलमेंट कर दे, कि कुछ रकम जो है वो दे देगा, तो उसको ये जो है वो फॉरफिटेड जो है वो अमाउंट नहीं किया जाएगा। 491 का सब क्लॉज 4 वेयर ए सिक्योरिटी टू अ बॉन्ड डाइज बिफोर द बॉन्ड इज फॉरफिटेड हिज स्टेट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पर अगर जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी दी है, अगर यदि उसकी व्यक्ति की बॉन्ड के फॉरफिटेड होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति में उसके सारे दायित्व की समाप्ति जो है, उस बॉन्ड के प्रति जितने भी उसकी लायबिलिटी होती है वो सारी लायबिलिटी उसके मरने के बाद जो है वो समाप्त मानी जाएगी। अब आई 491 का सब क्लास 5 जो कि बड़ा क्लास है, वो ये कहता है वेयर एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड
सीओटी जहां भी कोई व्यक्ति जो है वो सीओटी फर्निश किया है अंडर सेक्शन 125, अंडर सेक्शन 136 और अंडर सेक्शन 401 is convicted of an offence, the commission of such constitute a breach of the condition of his bond or of a bond executed in lieu of his bond under section 494. A certified copy of the judgment of the court by which he was convicted of such offence may be used as evidence in proceedings under the section against his sureties or sureties, and if such a certified copy is so used, the court shall presume that such offence was committed by him unless the contrary is proved. दोस्तों ये हालांकि देखने में भारी भरकम सेक्शन है लेकिन बहुत ही आसान सेक्शन है, इसको ध्यान से देखिए। कोई भी व्यक्ति जो बीएनएसएस के धारा 125 दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, बीएनएसएस की धारा 125 टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन सेक्शन, उसकी वो सिक्योरिटी फर्निश कर रहा है, या फिर धारा 136 और धारा 401। धारा 136 टॉक्स अबाउट द ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटीज और धारा 101 टॉक्स अबाउट द ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशिंग, आफ्टर एडमोनिशन। तो ये दो यानी 3 धाराओं की बात की दोस्तों, 125, 136, 401। इन 3 धाराओं के अधीन अगर प्रतिभूति सिक्योरिटी दी गई है और वो किसी ऐसे वो व्यक्ति जिसे सिक्योरिटी दी है वो किसी ऐसे अपराध के लिए कन्विक्टेड किया जाता है जिसे करना उसके कंडीशन जो 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 अपराध उसे कमीशन किया गया है उसे मान लिया जाएगा कि उसने बॉन्ड की जो है वो अवहेलना की है। यानी कि आप सिक्योरिटी से ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि वो बाद में जो है किसी ऑफेंस का वो कन्विक्शन, किसी ऑफेंस का दोषी हो जाए और उसे कन्विक्शन दी जाए। अगर ये ऐसा होता है तो बॉन्ड का वायलेशन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उस न्यायालय के निर्णय की जिसके द्वारा प्रतिभूति सिक्योरिटी को अपराध के लिए दोषित किया गया है, प्रमाणित प्रतिलिपि सर्टिफाइड कॉपी जो है उसके प्रतिभू के विरुद्ध इस धारा के अधीन सभी कार्रवाइयों में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जाएगी और ऐसी सभी सर्टिफाइड कॉपी को इस प्रकार से उपयोग में लाई जाएगी कि तो जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ऐसा अपराध उसके ही द्वारा किया गया है। यानी कि किसी कोर्ट में यदि किसी कोर्ट ने सिक्योरिटी को किसी अपराध के लिए कन्विक्शन कर दिया गया है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने जो सिक्योरिटी दी है वो उस बॉन्ड का वायलेशन होगा और उस सिक्योरिटी के विरुद्ध जो है वो सर्टिफाइड कॉपी से ये कोर्ट अवधारणा कर लेगी अगर कंट्ररी प्रूफ ना हो जाए कि अपराध जो है उसी के द्वारा यानी सिक्योरिटी के द्वारा ही किया गया है। अब आइए दोस्तों, that is another very important section, that is 492 talks about the cancellation of bond and bail bond। कब और किस परिस्थितियों में बॉन्ड कैंसिल या बेल बॉन्ड कैंसिल माना जाएगा? विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 491 के किसी भी प्रावधान को होते हुए भी where a bond or bail bond under this संहिता is for appearance of a person in a case and if it is forfeited for breach of a condition। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड की। धारा 491 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता के अंतर्गत अगर कोई बॉन्ड किसी मामले को अपीयरेंस के लिए दिया गया है और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका फॉरफिटेड हो गया है तो वहां पर ऐसी स्थिति में a bond executed by such person as well as the bond if any executed by one or more of his surety is that case shall be stand cancelled। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बॉन्ड की तथा उस मामले में उसकी सिक्योरिटी द्वारा जो एग्जीक्यूटेड बॉन्ड भी यदि कोई हो तो उसे रद्द मान लिया जाएगा। अगर तो रद्द मान लिया जाएगा। दूसरा क्लॉज ये कहता है देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड इन सच केसेस इफ द police officer or the court as the case may be for appearance before whom the bond was executed is satisfied that there was no sufficient cause for the failure of the person bound by the bond to comply with this condition। दोस्तों ये दूसरा क्लॉज ये कह रहा है कि अगर पहला क्लॉज ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति द्वारा एग्जीक्यूटेड बॉन्ड जो है उसके सिक्योरिटी द्वारा एग्जीक्यूटेड बॉन्ड भी यदि कोई हो तो सारे रद्द माने जाएंगे।
अगर बॉन्ड एक बार फोरफिटेड हो गया है तो सीओटी के सारे बॉन्ड जो है वो रद्द माने जाएंगे। दूसरा क्लॉज ये कह रहा है इसके बाद ऐसा व्यक्ति उस मामले में केवल अपने पर्सनल बॉन्ड पर नहीं छोड़ा जाएगा। यदि पुलिस ऑफिसर या कोर्ट को जिसके समक्ष होने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया है, यदि वो सेटिस्फाई हो जाता है कि बॉन्ड के कंडीशन का कंप्लायंस करने में, अर्थात बॉन्ड के फेलियर होने पर उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, परंतु इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे उस मामले में उस दशा में छोड़ा जा सकता है कि ऐसी धनराशि के लिए कोई नया बॉन्ड वो एग्जीक्यूट करे और एक या अधिक सिक्योरिटी से बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करा दे, तो पुलिस ऑफिसर कोर्ट जो है उस यहाँ पर बात की गई है दोस्तों कि अगर ये दोनों में फेल हो जाता है और साथ ही साथ अगर वो फ्रेश बॉन्ड देने में, यहाँ पर बॉन्ड फॉरफिटेड की बात की है दोस्तों, अब कोर्ट को लगता है या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो फ्रेश बॉन्ड देने में सक्षम है और एक या एक से अधिक सिक्योरिटी वो ला रहा है उस बॉन्ड को साइन कराने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो जो है ऐसी सिक्योरिटी को जो है अगर उचित समझे तो उस सिक्योरिटी को जो है वो कोर्ट ले सकती है। यानी बॉन्ड कोर्ट के सेटिस्फेक्शन पर है कि उस पहले वाले फॉरफिटेड बॉन्ड को वो इग्नोर कर दे और नया फ्रेश जो है बॉन्ड जो है उस व्यक्ति से ले ले। यहाँ पर बात 493 की गई, प्रोसीजर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ सिक्योरिटी और व्हेन अ बॉन्ड इज फॉरफिटेड, व्हेन एनी सिक्योरिटी टू द बेल बॉन्ड अंडर दिस संहिता become insolvent or die or whom any bond is forfeited under the provision of the section 491। तीन बातें कही गई दोस्तों, जहां पर सिक्योरिटी जो है जो किसी और व्यक्ति के ब्याह पर गारंटी दिया है वो या तो इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए या 491 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है उसका बॉन्ड जो है वो फॉरफिटेड हो जाता है। तीन कंडीशन के अंतर्गत देन द कोर्ट में whose order such bond was taken, जिसके ऑर्डर पर कोर्ट में ये बॉन्ड दिया गया है, और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में ऑर्डर द पर्सन फॉर whom such security was demanded to furnish fresh security in accordance with the direction of the original order, and if such security is not furnished, such court or magistrate may proceed as if there had been default in complying with such original order। दोस्तों 493 बहुत ही आसान सेक्टर है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई सिक्योरिटी जिसने बेल बॉन्ड भरा है इस चैप्टर के अंतर्गत वो दिवालिया हो जाता है या सिक्योरिटी की डेथ हो जाती है या कोई ऐसा बॉन्ड जो 491 के अंतर्गत फॉरफिटेड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जिसके ऑर्डर के बाद वो बॉन्ड लिया गया है या कोई और फर्स्ट क्लास जुडिशियल में दो है यानी ओरिजिनल कोर्ट जिसने वो बॉन्ड भराया है या कोई और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उपरोक्त सिक्योरिटी ने बॉन्ड पर जो साइन किया था उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि वो पूरा जो है वो फ्रेश बॉन्ड लेकर आए, फ्रेश सिक्योरिटी को लेकर आए, और ओरिजिनल ऑर्डर के अकॉर्डेंस में यदि वो व्यक्ति फ्रेश सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता है तो ऐसा माना जाएगा कि ओरिजिनल ऑर्डर के कंप्लायंस में डिफॉल्ट हो गया है। अगर भर देता है तो कोई बात नहीं, फ्रेश सिक्योरिटी ले आता है तो कोई बात नहीं, अगर फ्रेश सिक्योरिटी नहीं लाता है तो मान लिया जाएगा कि ओरिजिनल ऑर्डर में ही जो बॉन्ड भराया गया है उसी का डिफॉल्ट हो गया है और जैसे भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है कोर्ट वैसी कार्रवाई करेगा। Now 494 talks about the bond required from child. When a person required by any court or officer to execute a bond is a child, such court or officer may accept in lieu of thereof a bond executed by a security only। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, यदि किसी कोर्ट ने या पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए अपेक्षा किया गया और वो व्यक्ति माइनर है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय व अधिकारी उसके बदले में केवल सिक्योरिटी द्वारा एग्जीक्यूटेड बॉन्ड को सिक्योरिटी द्वारा किसी भी सिक्योरिटी द्वारा एग्जीक्यूटेड बॉन्ड को जो वो स्वीकार कर सकता है कोर्ट। 495 talks about the appeal from the order under section 491 का कोई अगर ऑर्डर दिया गया प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड और कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि 491 के अंतर्गत दिया गया हर ऑर्डर जो है वो अपीलेबल होगा, यानी कि हर ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है। कहाँ अपील होगी ये बताया गया, इन केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय ए मजिस्ट्रेट, अगर ऑर्डर जो है 491 का ऑर्डर जो है या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सीजीएम कोर्ट ने दिया है तो उसके खिलाफ ऑर्डर जो है वो सेशन कोर्ट में होगा। और अगर इन केस ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय कोर्ट ऑफ, अगर सेशन कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो ऐसे स्थिति में टू कोर्ट टू विच अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय सच कोर्ट, यानी सेशन कोर्ट के खिलाफ जहां भी अपील हो सकती है उस कोर्ट में होगी, ज्यादातर ये हाई कोर्ट ही होता है। अब लाइए लास्ट सेक्शन है 496 पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू टू द सर्टेन रिकॉग्निजेंस।
the High Court or Court of Session may direct any magistrate to levy the amount due on a bond for appearance or attendance at such High Court or Court of Session. तो ये लास्ट सेशन ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से यह निर्देश दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि वो उस रकम को जो रिकवर करे जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में हाजिर या उपस्थित होने के लिए किसी बॉन्ड पर दे है। तो दोस्तों ये कुल मिला के पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर था ये बेल और बेल बॉन्ड का, जो शुरू होता था 478 से लेकर बेल इन वैल्यूएबल केसेस, बेल इन नॉन वैल्यूएबल केसेस, कब और किस परिस्थितियों में जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर को जेल से मुक्त किया जाएगा, और एंटीसिपेटरी बेल कब और किस परिस्थितियों में बॉन्ड लिया जाना है, बॉन्ड कब फॉरफिटेड हो जाएगा, या अगर कब बॉन्ड कैंसिल या बॉन्ड कैंसिल हो सकता है, और अगर कैंसिल होता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है हम लोगों ने डिटेल में इस पूरे के पूरे चैप्टर को किया था। और यकीन मानिए कि एक ऐसा चैप्टर है जिस पर कि क्वेश्चन जो है वो होम एग्जामिनेशन में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इसको डिटेल में, इस वीडियो को तीनों पार्ट को अगर आप डिटेल में अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग टू द चैप्टर नंबर 35। थैंक यू वेरी मच।